Hello everyone, this side Padmanath Dwivedi on the live platform of the Speed Coaching under the guidance of the great guidance of Wasim sir. Here it is one of the best information about you all that one of our student has been selected in the Central Armed Police Forces. Here is the view you can see here. This is the guy that he has attended the offline classes in our coaching institute under the great guidance of Wasim sir and rest of the other teachers. Today we are inviting that the students of our school offline classes here on the stage and introduce you all how he has made the strategy and how he had followed the guidance of our teachers, respected and renowned teachers of the institute in entire Allahabad. So here I would like to call the Wasim sir and along with the student, those who have attended and secured the rank, all India rank here 2021 rank. Here is the sir and rest of the sir. So I would like to hand over the mic to the Wasim sir and so for the garlanding and firstly I would call to other teachers Asfaq sir, Kushal sir, please come on the stage and just reward the student. He has attended so auspicious, you can say this is a really auspicious occasion on this live platform, the Speed Coaching. So I would like to call to the Asfaq sir, for Amit sir, yes please come and garland to the Piyush Pandey. He is the only student. Wasim sir, firstly will garland to the Piyush. And now Amit sir, I would like to call the Amit sir. Reward to the Piyush Pandey. He is the only person. There are a lot of many students. Now Kushal sir will come forward. There are a lot of the teachers. These teachers are the pillars of our institute. The Speed Coaching. They had made the rigorous effort. Now the next Asfaq sir is the gem of our institute. These the teachers have put very severe effort, rigorous effort to make the selection. Now another student I would like to call friend of Piyush Pandey, Vivek. He has also secured the rank in the CAPF examination. He also rewarding his friend, and that is really a huge moment when both the duo, these the two friends has been selected. Now the next candidate who has also selected, Arun, please come forward. He is a friend of the Piyush also. That is really a very inspiring moment for all of you, even those who are watching this. So this is really a great opportunity. If you really want to be one of them, I really suggest you join our hands and we will definitely make our best effort to get you selected. Now there are some sweets also we have arranged all the teachers. बिना मिठाई के कहाँ कोई त्योहार हम लोग कोई अच्छी चीजें मनाते हैं. Here is the what, there are a lot of people, those who are gathered over here. The photography sessions is also going on. And what the best thing is about is that when you really putting your best effort to get selected, then you will get the reward of this. Hard work pays off. You know what, if you really deserve anything, if you are really desire anything, firstly you deserve, and deserve only comes from the hard working. So these are the teachers. Now I would like to call the rest of the other teachers, say a few words about this success and all and blessings to give these selected students in all India. Thank you sir. बहुत बहुत धन्यवाद पद्मनाभ सर का. आज वो शुभ दिन, वो गर्व का दिन, पीयूष द्वारा जो हम सभी टीचर्स को, द स्पीड के सभी टीचर्स को प्रदान किया गया है. निश्चित तौर पे हम पीयूष के आभारी हैं जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम के दम पे, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पे अपनी सफलता का इतिहास रचा है. हम सभी मंत्र मुग्ध हैं इनको सफल देखकर. आज हम सभी लोगों को गर्व की अनुभूति हुई है इन्हें माला पहनाकर सम्मानित करते हुए, इन्हें लड्डू खिलाते हुए. मेरे प्यारे बच्चों, द स्पीड ने हमेशा कोई सा भी एग्जाम रहा हो, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम रहा हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम रहा हो, सभी एग्जाम में सफलता के झंडे गाड़े हैं. यहाँ के छात्रों ने सफलता का इतिहास रचा है. उसी कड़ी में पीयूष पांडे, जो कि बहुत ही होनहार
और हमारे एक बहुत कर्मठ छात्र रहे हैं, आपके बीच उपस्थित हुए हैं। अपनी सफलता का वृत्तांत सुनाने के लिए कैसे कठिनाइयों को, कैसे बाधाओं को पार करके इन्होंने सफलता का इतिहास रचा है, इसके लिए आज सभी लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत हुए हैं। आज आप इनको सुनकर, इनकी बातों को अपने जीवन में अगर आत्मसात करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत कम समय में इस बच्चे ने सफलता प्राप्त की है, बहुत ही कम टाइम में। और ये एक ऐसा जुनूनी बालक था कि मैं हमेशा कहता था इनसे कि आप निश्चित रूप से अपना ड्रीम जॉब पाओगे। इनका सपना फोर्स में ही जाने का था, इन्होंने लगातार प्रयास जारी रखा अपना, सीडीएस भी इन्होंने दिया, एनडीए भी दिया। फाइनली सीएपीएफ 2022 एग्जाम में इनका सिलेक्शन हो गया। एसएससी की तैयारी का ये पहला एग्जाम, और पहले एग्जाम में इन्होंने क्रैक कर लिया आपका सीएपीएफ एग्जाम, जिसको आप सीपीओएसआई के नाम से भी जानते हैं। पूर्व में इसका नाम सीपीओएसआई था, अब चेंज हो गया है, सीएपीएफ एग्जाम हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सीजीएल के कैटेगरी की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब इन्होंने प्राप्त करी है, दरोगा बने हैं। देश की सेवा में सर्वोच्च योगदान ये देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आज हम सभी सुरक्षित हैं, हमारे आर्मी की वजह से, हमारे नेवी की वजह से, एयरफोर्स की वजह से, और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की वजह से, जो बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करती है। निश्चित रूप से हम सभी टीचर बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं। ऐसा क्षण हम चाहते हैं कि हर एक छात्र हमारे जीवन में लेकर आए और हमें खुशियां प्रदान करे। आज वो गर्व का दिन आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। पद्मनाभ सर ने इस सेशन को स्टार्ट किया है, और भी टीचर्स यहां उपलब्ध हैं। पीयूष के बारे में बताएंगे, पीयूष को बधाइयां देंगे। लेकिन पीयूष यहां आपके लिए आए हुए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, इनकी बताई गई एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है आपके लिए। अपने बारे में ये बताएंगे किस तरीके से इन्होंने सफलता का सफर तय किया है और सर्वोच्च सफलता पाई है एसएससी के एग्जाम में। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बुलाना चाहूंगा अमित सर को, जो कि पीयूष के, अमित सर आप इधर उधर नहीं जा सकते भाई, पीयूष की सफलता में आपका एक विशेष योगदान है। आप पीयूष के साथ खड़े रहिए। और ये ऐसा जुनूनी बालक है, बहुत कम लोगों के अंदर ये जुनून दिखता है। एक है हमारे और भी विवेक गुप्ता जी हैं, वो भी आए हुए हैं, ये भी, इनका भी सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ है। आप किसी कारण से इनका लाइव सेशन नहीं मिल पाया, लेकिन आज इनका भी लाइव सेशन मिलेगा। और इस जुनूनी बालक के मुखार बिंदु से आप लोग इनकी सफलता की कहानी सुने और उसको अपने जीवन में उतारे, डेफिनेटली आपको भी सफलता प्राप्त होगी। तो मैं देना चाहूंगा माइक पीयूष पांडे को, जो आपको संबोधित करें, आपको मोटिवेट करें। निश्चित रूप से इनकी बातों को सुन के, इनके पीछे पीछे चल के आप तमाम जो अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। पीयूष जी। कैप निकाल दी क्या सर? First of all, Jain to all of you. I myself, Piyush Kumar Pandey, selected in Central Police Organization, conducted by Staff Selection Commission at the rank of All India level 2121. I myself want to give the full credit to my parents and the respected Wasim sir and his team. मेरी सफलता के पीछे की कहानी 7 सालों की है। वर्ष 2016 था जब मैं अपने एक छोटे से गांव से प्रयागराज की दूरी तय करके यहाँ पे कमीशन्ड ऑफिसर बनने का सफ़र शुरू किया था।
वर्ष 2017 से मैं यूपीएससी कंडक्टेड एनडीए एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हुआ। मैंने यूपीएससी रिटन एनडीए एग्जामिनेशन 5 टाइम्स क्वालिफाई किया। एसएसबी में अपार निराशा मिल रही थी। फिर मैंने एसएसबी के लिए अलग कंडक्शन क्लासेस ली। मेरा सीडीएस और एफकैट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अभी तक मैं 11 एसएसबीज अटेंड कर चुका हूँ। मेरी 12वीं एसएसबी 21 सितंबर को एफकैट के थ्रू 5 एएफएसएसबी गुवाहाटी में शेड्यूल्ड है, लेकिन अब ज्वाइनिंग हो जाने की वजह से मैं उस एसएसबी को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच मुझे एसएससी सीपीओ के बारे में पता चला, जिसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी ठीक होने की वजह से मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। गणित का उचित मार्गदर्शन लेने के लिए मैं वसीम सर के गाइडेंस में आया और हम लोग कर्नलगंज ब्रांच पे गणित के विषय में काफ़ी ज़्यादा कौशल जो है वो मुझे सीखने को मिला। वसीम सर द्वारा बताए गए ट्रिक्स का एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि एसएससी की मेरी पहली तैयारी थी और एसएससी का मेरा ये पहला एग्ज़ाम था जिसमें मैं अपीयर हो रहा था। इसके पहले मैंने एग्जामिनेशंस एयरफोर्स, नेवी, एफकैट, सीडीएस, सीजीसीएटी, इन सारे एग्जामिनेशंस को देने का एक्सपीरियंस था मेरा। सीन ऐसा था कि जब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सर्विसेज के बारे में एक जुनून पहले से व्यापित था, मैं दोस्तों इस पीडीएफ में पहला और एकमात्र ऐसा स्टूडेंट होऊंगा जिसका फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद भी उसका ज्वाइनिंग लेटर आया है, एकमात्र अकेला। और उसका वजह सिर्फ और सिर्फ वसीम सर और वसीम सर से प्रेरित अमित सर हैं। जिस वक्त मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला, उस वक्त मुझे ये आभास हो रहा था कि वास्तव में यदि वह प्राथमिकता पहले मुझे न दी गई होती, अगर मेरा रिजेक्टेड फॉर्म एक्सेप्ट न हुआ होता, तो शायद ये सफ़र वहीं अंत हो गया होता। मैं कहानी बताना चाहता हूँ कि मेरे टीयर 1 से ज्वाइनिंग का सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। 9 नवंबर से 11 नवंबर 2022 को एग्जामिनेशन शेड्यूल था सीएपीएफ 2022 का। मुझे आज भी याद है 30 अक्टूबर को सीआर रीजन का एडमिट कार्ड रिलीज किया गया था, जिसमें मेरा फॉर्म ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया था कि मेरा सिग्नेचर ब्लर है, मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं हो सकता। मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड था, क्योंकि मैं अपनी फुल प्रिपरेशन कंटिन्यू किया हुआ था इस चीज़ की। उसी बीच में सर का कैप्सूल बैच भी लागू था और मैं कैप्सूल बैच का स्टूडेंट रहा हूँ, फर्स्ट बेंचर। कैप्सूल बैच के सिखाए गए टिप्स एंड ट्रिक्स भी वाकई मुझे बेनिफिट प्रदान किए इन द एग्जामिनेशन हॉल। जब फॉर्म मेरा रिजेक्ट हो गया, फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद से फिर मेरे पास कोई विकल्प था नहीं। मैं रेस्पेक्टेड सर से बात किया और बात करने के बाद से इनके द्वारा मुझे मोटिवेट किया गया और बताया गया कि आप जो है मेन ऑफिस आइए। आया और यहाँ पे आदरणीय अमित सर के सहयोग से एसएससी ऑफिस जाने के बाद से कुछ एक संघर्ष बिंदुओं पे चहल पहल करने के बाद से दिनांक 8 नवंबर को 2:20 पे दोपहर के मेरा एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया। मैं बताऊं, जिस वक्त मुझे मेरा एडमिट कार्ड मिला, मुझे लगा कि मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। अब चूंकि परीक्षा का अंतिम जो सप्ताह होता है, वो अंतिम सप्ताह हम सबका रिवीजन टाइम होता है, लेकिन मैं एक ऐसा छात्र था जो कि इस चीज से वंचित रह गया था। इसके बावजूद जिस दिन मेरा एडमिट कार्ड आया, उस दिन मेरे कंधे पे एक जिम्मेदारी और बढ़ गई थी कि जिस गुरु ने मुझे इस लायक किया कि मैं एग्जाम में अपीयर हो पाऊं, उस गुरु के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। और उस दिन मैंने सोचा कि गुरु के लिए शिष्य से क्या भेंट अनुपम हो सकती है। मैंने सोचा कि
मेरे प्रयास से यदि मैं अपने गुरु को अपना ज्वाइनिंग लेटर भेंट करूं तो मुझे लगता है मेरे गुरु बहुत खुश होंगे। फिर मैंने आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने की ठान ली। रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई करने के बाद से सीन था फिजिकल का, और फिजिकल ही सीएपीएफ एग्जामिनेशन में मोस्ट टफ पार्ट होता है। सीएपीएफ एग्जामिनेशन के फिजिकल के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ा था। उसमें बॉडी में जर्क भी लग गया था, क्योंकि इसमें हाई जंप और रनिंग की प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ती है। संघर्षों के साथ फिजिकल क्वालिफाई हुआ। मेडिकल में नाक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन के थ्रू भी गुजरना पड़ा। फिर वेट लॉस करना पड़ा। फाइनली जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन मेरा AIR 2121 के साथ मैं सीआरपीएफ में सब ऑर्डिनेट ऑफिसर, जिसे सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, उसके पद पर मेरा चयन हो चुका था। मुझे आज भी याद है, उस रात मैं और मेरे पिताजी दोनों सोए नहीं थे। वजह यह थी कि 7 साल बाद से ग्रामीण गतिविधियों से भ्रमण करते हुए यदि किसी बच्चे का चयन सरकारी नौकरी में अच्छे ओहदे वाले पद पर होता है तो उस दिन उस पिता को नींद नहीं आती है। रात के 10:30 बजे करीब में रिजल्ट मेरा प्रकाशित हुआ था, और उसके बाद से हम दोनों ऐसे रात में बात करते रहे। मुझे सिलेक्शन के लिए उन लोगों की कुछ बातें भी याद आती हैं, जिन लोगों का मानना यह था कि 6 साल से यदि कोई अभ्यर्थी किसी दूसरे शहर में जाकर सिलेक्शन पाने में असमर्थ रहा है तो वह वहां पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, वो किसी और गतिविधियों में संलिप्त रहा होगा। मैं काफी लोगों से बात करना भी इसीलिए छोड़ दिया था, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स अकॉर्डिंग टू हिज लेवल ऑफ परसेप्शन। मुझे ये अंदेशा था कि वन डे आई विल डेफिनेटली बी सेलेक्टेड एज एन ऑफिसर, वॉट एवर माई ड्रीम वॉज। इस पूरे के पूरे संघर्ष में मुझे सबसे ज्यादा यदि योगदान रहा तो मेरे माता पिता का रहा, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ हर एक विपरीत धाराओं को अपने तरफ मोड़ लिया। और साथ ही साथ मैं अमित सर के योगदान को कतई नहीं भुला सकता, जिन्होंने वसीम सर के प्रेरणा से मुझे, जो कि उस पंक्ति से बाहर हो गया था लड़का, उसे उस एग्जाम में बैठकर उसका सिलेक्शन करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पता है, मुझे इस स्टेज पे आने के बाद से एक चीज फील होती है कि स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार वो मोरली डाउन रहता है, जिसके लिए किसी एक ऐसे रेजर की जरूरत होती है जो उसे उठा सके। जिस समय मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा था उस समय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उस समय इनकी ये कही गई बात से मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड हुआ और फाइनली आगे चल के मुझे सफलता भी मिली। तो इस चीज के लिए मैं वसीम सर का बहुत आभारी हूं कि पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने मोरली मोटिवेट भी रखा, जिसके वजह से चीजों को काफी आसान करने में मुझे बहुत अच्छी सी मदद मिली। और साथ ही साथ मैं अपने सारे द स्पीड के परिवार का सादर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिनके कुशल सहयोग और मार्गदर्शन के अनुसार मुझे सफलता मिली। इनके द्वारा पढ़ाया गया जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स था वो एग्जामिनेशन में मुझे काफ़ी बेनिफिशियल हुआ। मैं एज अ परमानेंट कैंडिडेट इस चीज़ को बता रहा हूं कि डेफिनेटली वॉट एवर द टिप्स एंड ट्रिक्स आई taught here, definitely that will be beneficial in the examination while the candidate is appearing in the examination hall, because the things are very normal here, the things are very practical here. You will definitely get it understood if you will just be here with your full body and full mind. Only one condition is you should be here. तो इस चीज़ के लिए अभी थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। वजह यह कि मेरे वजह से मेरे माता, मेरे पिता और मेरे गुरु गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि मेरे वजह से मेरे जो संबंधी हैं वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे आज भी एक चीज़ याद है कि जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस यात्रा में लगी थी उसको मैं एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँगा कि
watching your name in the final merit list of any examination and feeling the tears in your parents' eyes is another level of happiness. तो इन सारी चीज़ों का सहयोग मुझे मिला। इस पे एक लाइन याद आती है रामधारी सिंह दिनकर की, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, जाते हैं हमें उठाकर ही सतपथ की ओर लगाकर ही। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से कभी न उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो वा पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। इन सारी बातों के साथ मैं वसीम सर को अपना ज्वाइनिंग लेटर गिफ्ट करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सर सादर इसको जो ओपन करें हम सबके सामने और इस भेंट को अनुग्रहित करें। सर इसे ओपन करिए सर। सर ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इन्हें ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया गया है। आज रोजगार मेला भी लगा था सीआरपीएफ कैंप में, और ईश्वर की कृपा, इनकी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद, हम लोगों का प्यार आशीर्वाद निश्चित रूप से इनके काम आया। और हमें बहुत खुशी है कि इतने छोटे छोटे बच्चे अपनी मेहनत, ईमानदारी, लगनशीलता के बल पे लाखों लोगों में अपना स्थान सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं ओपन करने जा रहा हूं इनका ज्वाइनिंग लेटर। अमित सर भी आएंगे। अमित सर चूंकि बहुत बड़े सूत्रधार हैं इस सफलता के। आइए अमित सर, बहुत खुशी की बात है। और बहुत खुशी की बात है अमित सर, ज्वाइनिंग में आपका बहुत योगदान, एंड दिस इज योर पार्ट, प्लीज ओपन इट। और ये देखिए, ये सबसे बड़ा लव लेटर है पीयूष का, जो दिया गया है सरकार द्वारा, प्रेम पत्र जो मेरे हाथ में है। बहुत खुशी हो रही है मुझे इस प्रेम पत्र को देखकर। कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अमेठी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रोल नंबर है, नेम है पीयूष कुमार पांडे, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है पीयूष कुमार पांडे। बहुत खुशी हो रही है और प्राउड फील कर रहा हूं मैं। और कहाँ मिला इनको? अच्छा अच्छा, इनका एड्रेस है। क्या बात है, अमेठी मिला है। ट्रेनिंग कहाँ होगी आपकी? अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई बेटा। ऐसी ही ज्वाइनिंग लेटर आपके भी हाथ में आनी चाहिए, ठीक है। अभी एसएससी और भेजेगी, एसएससी नहीं, जो डिपार्टमेंट भेजेगा आपको ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। और बहुत खुशी की बात है पीयूष, संभाल के रखिए, ये सफलता है। लेकिन ये पहली सफलता, आखिरी सफलता नहीं है पीयूष की, मुझे पता है। ये सीएपीएफ के लिए, सॉरी, अभी ये असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, एसी के लिए निश्चित रूप से एग्जाम देंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। और हम चाहेंगे सिविल सर्विसेज में इस तरीके की मेधावी प्रतिभाएं आए। डेफिनेटली बेटा, समाज का बहुत स्तर सुधरेगा और हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं बुलाना चाहूंगा कुशल दुबे सर को, आए इस बच्चे के लिए 2 शब्द कहें, फिर अशफाक सर आए। अमित सर आप लास्ट में एंड करेंगे। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कंग्रेचुलेसन, बधाई दूंगा इनको, पीयूष पांडे को। मुझे याद है जब मैं आप कैप्सूल बैच में आते थे तो कहते थे सर इस क्वेश्चन को स्टिक से भी लगा सकते थे क्या? तो मैं कहता था हाँ स्टिक से भी आप लगा सकते थे। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि इनकी अभी ये पहली सफलता, आखिरी सफलता नहीं है, इसके बाद ये असिस्टेंट कमांडेंट बन के दोबारा आएंगे और फिर से सर दोबारा लड्डू खाएंगे सर के हाथों से। तो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा अशफाक सर को। अशफाक सर आइए, आप भी कुछ बताइए।
बहुत बहुत बधाई पीयूष जी को। और मुझे भी याद है वो दिन, जैसे पीयूष जी ने बताया है कि जो हुआ था एडमिट कार्ड को लेकर के, और मुझे याद है, मुझे उम्मीद थी कि एडमिट कार्ड मिलने के बाद ये अब ज्वाइनिंग लेटर लेकर के ही आएंगे, और उम्मीद पर खरे उतरे। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है पीयूष जी के लिए भी, सर के जो पीयूष ने सर को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। और मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे भी ऐसे गिफ्ट जरूर लाइए, और बच्चे लाते भी हैं, बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से कांग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा जी। आ जाइए, अब विवेक जी आएंगे, अरुण जी, दोनों लोग पीयूष के मित्र हैं, साथ पढ़ते भी थे कर्नलगंज ब्रांच पे। आ जाइए। पीयूष कुमार पांडे जो हमारे मित्र भी हैं और साथ में पढ़ते थे, और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका CPO-SI में सिलेक्शन हो गया है। इसकी बहुत बहुत बधाई है। और इनकी पहली है, अंतिम नहीं, और हो सकता है जल्दी ये इस मंच पर फिर दोबारा ये आएँ, और जल्दी ही आएंगे। मैं अपने प्रिय मित्र पीयूष पांडे को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये इनकी SSC की पहली सफलता है, चूँकि पहला एग्जाम है, चूँकि पहले एग्जाम में ये SSC को क्रैक कर दिए हैं। और बेटा ये वास्तव में यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। और डेफिनेटली चीजें चलाने के लिए तो बच्चों से ही फीस लेनी पड़ती है, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं है, नथिंग है बेटा। हमारे लिए उसका कोई मोल नहीं है। चीजों को चलाने के लिए, सिस्टम रन कराने के लिए लेनी पड़ती है, पैसा लेना पड़ता है, फीस बेटा। लेकिन वास्तव में जो गुरु दक्षिणा इन्होंने दी है, यही वास्तविक गुरु दक्षिणा है। सफल होकर ये आए हैं, इनको माला पहनाकर हमने इनको सम्मानित किया है, और ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। और हम चाहते हैं हर एक मेरा बच्चा इस तरीके का सम्मान, गौरव मुझे प्रदान करे। और इसी के साथ कुछ सवाल है हमारे पीयूष जी से, मैं पूछना चाहूंगा। पीयूष जी, आप बताइए, बच्चों की तैयारी में आजकल जो सोशल मीडिया के रील्स चल रहे हैं, उनका क्या योगदान है? सही सही बताइएगा। क्या वो फायदेमंद है बच्चों के लिए, क्या नुकसानदेह है? अवश्य बताइएगा। क्या रील्स देखकर बच्चा सफल हो सकता है अगले साल भर या 2 साल की तैयारी में, कि उसे 8 से 10 साल लगेंगे? क्या वो नहीं होगा सफल? ये अवश्य बताइएगा। आज का सबसे ज्वलंत प्रश्न यही है, बच्चों का रील्स देखना, रील्स में एडिक्टेड हो जाना। पीयूष इस पर अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद सर। आपका जो सवाल है सर, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा सादृश्य होता प्रतीत होता चला आ रहा है। आजकल युवा पीढ़ी में एक तरीके का बौनापन कह लीजिए सर, जिसमें अपना वक्त जो है वो ज़्यादा किफ़ायती स्तर पे न उपयोग कर पाने के लिए ये लोग रील्स वगैरह का, थैंक यू सर, ये लोग रील्स वगैरह पे अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। मुझे एज अ कैंडिडेट मुझे यह नहीं लगता कि अपना महत्वपूर्ण वक्त हम किसी भी एक ऐसे मार्ग पर जाया करें जिस मार्ग का हमारे सफलता वाले मार्ग से कोई संबंध नहीं हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसी चीजें आपके मस्तिष्क को विचलित करके डेविएट करने में पुरजोर समर्थन करती हैं, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं सफलता के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न कर सकता है। आज की युवा पीढ़ी को कतई ऐसे कामों में स्वयं को संलिप्त नहीं रखना चाहिए जो कार्य उसको उसके सफलता के मार्ग से विचलित करते हैं। वो रील्स देखना हो, या किसी ऐसे नशे की हालत में पड़ जाना हो, या किसी ऐसे अन्य गतिविधियों में संलिप्त हो जाना हो जिसके कारण उनके माता पिता, उनके गुरुओं का विश्वास उनसे टूटता हो। तो सिर्फ सर आजकल सिर्फ युवाओं के पास सिर्फ रील्स का ही वो नहीं है,
उसके साथ साथ और भी सारी डिफिशियंसीज ऐसी आ गई है सर युवा पीढ़ी में, जिसकी वजह से उनके सफलता के मार्ग में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. सो डेफिनेटली दिस इज अ नेगेटिव थिंग एंड दिस शुड नॉट बी फॉलोड बाय द यूथ्स, बिकॉज डेफिनेटली आफ्टर अचीविंग सक्सेस इट रियली फील्स वेल, इट रियली फील्स गुड. और तब तो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी वजह से आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स प्राउड फील करें. तो ये सारी चीज़ें एक निगेटिव एस्पेक्ट प्रदर्शित करती हैं. तो मेरे अनुसार इन सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट करके स्वयं को सफलता के मार्ग से दूर कतई नहीं करना चाहिए. धन्यवाद सर. तो पीयूष की बातें आपने सुनी, बहुत ही सरलता सहजता के साथ इन्होंने अपना सफलता का सफर आपसे शेयर करा. कई सारी चीजों में आपको मोटिवेट किया, क्या एक स्टूडेंट को करना चाहिए, कैसे रील से दूर रहना चाहिए, या और भी बहुत सारे माध्यम है जो आपका समय बर्बाद करते हैं, उनसे कैसे बचना है, उन चीज़ों को छोड़ना है, उन चीज़ों के बारे में बताया. और बेटा सफल होना है तो सोशल मीडिया का मिसयूज करना बंद कर दीजिए. बहुत यूजफुल है सोशल मीडिया, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जितना ये यूजफुल है उसका कई गुना आपके लिए घातक सिद्ध हो रहा है. अगर सफल होना है तो आज से ही पीयूष जी, आज से ही बच्चे आप लोग सोशल मीडिया स्पेशली रील्स का तो त्याग कर ही दें. बर्बाद हो जाएंगे रील्स बनाने वाले बेटा, उनके तो व्यूज बढ़ेंगे लेकिन आपके व्यूज घट जाएंगे. एक समय ऐसा आएगा जब ना आपके परिवार वाले आपको देखना पसंद करेंगे, ना समाज आपको देखना पसंद करेगा, ना हम देखना पसंद करेंगे. याद रखिएगा इस बात को. तो व्यूज आपको अपने बढ़ाने हैं तो बेटा इतनी जोरदार ढंग से मेहनत करिए कि लोग आपके रील्स बनाएं, आपको दूसरे की रील ना देखनी पड़े, आपके रील्स बनाएं. जैसे पीयूष पांडे का मैं रील बनाने जा रहा हूं, ठीक है बेटा. आज इन्होंने सफलता का इतिहास रचा है, झंडे गाड़े हैं. तो मैं आपको बता दूं, द स्पीड एक ऐसी संस्था है जो प्रयागराज में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया है और दे रही है और आगे भी देगी. रीजन क्या है यहां पर? क्योंकि यहां बड़ा तपा तपाया बच्चा आता है पीयूष टाइप का, घास भूसा नहीं पहुंच जाते हैं द स्पीड में. द स्पीड का एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है पूरे प्रयागराज में. सबके बस का नहीं है कि यहां आके यहां क्लास कर सके. रीजन फीस नहीं है, रीजन यहां का वर्कलोड है. यहां आप पढ़ते हैं तो आप मजाक नहीं कर सकते, आप हवा हवाई पढ़ाई नहीं कर सकते. आप यहां आए हैं तो प्रॉपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर नहीं कर पाएंगे तो 4 दिन बाद क्लास छोड़ना पड़ेगा आपको. इसलिए बेटा आपका सिलेक्शन होता है. यहां मेहनत करना बच्चों को सिखाया जाता है, और जो लापरवाह है, जो काहिल है, कामचोर है, वो अपने आप निकल लेता है यहां से. तो ऐसे हीरे तब के निकलते हैं द स्पीड की मशीन से. और निश्चित रूप से बेटा आप भी एक दिन बड़ा नाम करेंगे. और जो बच्चे अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच से जुड़े हैं या इंडिविजुअल से, वो 24 का टारगेट रखें, 24 में सिलेक्शन लेना है किसी भी प्रकार से. इसी के साथ मैं पीयूष को फिर से बधाई देना चाहूंगा और ईश्वर से ये मेरी कामना है कि पीयूष सफलता की अनंत ऊंचाइयों को छुएं, शिखर पे पहुंचे. ये हमारा सीना गर्व से और चौड़ा करें, हमारी ईश्वर से ये कामना है. निश्चित रूप से ईश्वर हर मेहनत करने वाले को फल जरूर देता है, मीठा फल देता है, जैसे कि पीयूष आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है. मेरे प्यारे बच्चों, मैं इनके माता पिता का भी बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहूंगा इसी मंच से, जिन्होंने ऐसे योग बच्चे को जन्म दिया जो देश की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है. और सर्वश्रेष्ठ जो देश के लिए सेवा है बेटा, पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी ही करती है, इसमें कोई शक नहीं है. तो पीयूष आपको बहुत बहुत आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं. इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आप और भी बहुत आगे जाएंगे. और मेरा सपना जो मैंने आप लोगों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए, आप हुए और आप जैसे तमाम बच्चे हैं, मैंने जो देखा है, एज ए सिविल सर्वेंट आइए, आप आईपीएस बन के आइए, बहुत खुशी होगी. आप कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली बेटा. आप जब इतनी कम उम्र में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एसएससी का, तो डेफिनेटली अगर आपने 2-3-4 साल का जॉब के दौरान ही अपनी पढ़ाई को जारी रखा तो डेफिनेटली आप
सिविल सर्वेंट सिविल सर्विसेज भी क्रैक करेंगे। शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।